Welcome to AgriCoach Commandos. I'm Ritu Rani and I am here to help you for preparing plant science JRF, and my classroom is AgriCoach Commandos. You can enroll the class on the Teachment app on YouTube. I will post some videos, but the whole syllabus will be taught on the Teachment app. Okay, link will be given in the description box. You can check it there. Okay, and you can share this video and about the channel to your friends and who are preparing for plant science JRF, and it will be helpful for you and your friends too. Okay, so now in yesterday's class we have seen about the basic concepts of classical genetics. Okay, in today's class we will see the other branches of genetics as cytogenetics, biochemical genetics, molecular genetics, and many more. So yesterday we discussed till the cell theory. Today we will discuss about from the nucleus. Okay, what is nucleus? We all knows that nucleus is the central portion of any cell. Okay, and it possesses the nucleic acid, means DNA or RNA, which is the hereditary material. But that time we didn't knew about the which one is the genetic material, either it is DNA or RNA or the protein. So from that unknown portion, that which one is the genetic material, from the 2 days we know about everything about the nucleus and the nucleic acids. We are engaged today in the genome editing and using the CRISPR-Cas9 technology. That are a very vast thing, okay, about the genetics. Today we know, but the development from that point to this point in 2021, as we know that the corona vaccine was made in just 4 to 5 months, and it is a great achievement by the scientist. And not only one scientist, in many countries many scientists created the corona vaccine in very short time, only due to the development of genetics and using the genetics, the genome editing, and using the genome of coronavirus and their avalent strains they can make in their laboratories. So it is a great achievement for the scientists. So now we will see the nucleus. The nucleus, first of all, described by Brown, Robert Brown. Okay. He discovered in the Tradescantia plant. In 1838. Okay. After that, he just told this one is nucleus, and he couldn't tell its significance and many more about this. So after that, the mixture came in limelight in 1871, and he isolated the nucleus from the cell, and then also the nucleoprotein, the nuclein, the nucleoprotein and the nuclein. He called nuclein to the nucleic acid, and the Altman in 1889 termed nucleic acid. Okay, so this one is about the naming and the discovery of nucleus. Now Fleming, who given the term mitosis, and Palmer and Moore given the term meiosis. Then Waldeyer given the term chromosome. हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे सेल,
ठीक है। सेल के बाद देखें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे पहले खोजा था ब्राउन ने ट्रेडेस्कैंथिया प्लांट में। फिर मिस्टर साहब आए जो कि न्यूक्लियस के एक्सट्रैक्शन का टेक्निक लाए और बताया कि उसमें न्यूक्लियन और न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लियन और न्यूक्लियोप्रोटीन को भी उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। फिर अल्टमन साहब बोले कि नहीं, न्यूक्लियन नहीं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उन्होंने टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। फिर फ्लेमिंग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम लोग सेल डिवीजन देखते हैं, सेल देखें, सेल में क्रोमोजोम है, वहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो क्रोमोजोम्स का डिवीजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब सेल डिवीजन होता है यानी माइटोसिस होता है तो लॉन्गिट्यूडिनली क्रोमोजोम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। लेकिन फार्मर और मूर ने बताया कि जो क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है। ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो वो मियोसिस था और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन माइटोसिस में हो रहा था। ठीक है। वाल्टेयर साहब क्रोमोजोम टर्म दिए। ठीक है। अब क्रोमोजोम में भी था कि कौन सा क्रोमोजोम है। सबसे पहले खोजा गया एक्स क्रोमोजोम। ठीक है। जो कि हेनकिन साहब ने खोजा था 1891 में। हेनकिन उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक्स बॉडी बोला, उनको नहीं पता था कि ये क्या है, तो उन्होंने एक्स बॉडी बोला था। ठीक है। और ये कुछ मेल इंसेक्ट्स में खोजे थे। उसके बाद आए मैकलम 1902 and he discovered the X chromosome in grasshopper. The Hemiptera. We know the grasshopper are in Hemiptera order of the insecta. We will see the Wilson and Steven. The Wilson and Steven. They discovered both the male and female, both the male and female. Henkin showed that only male insects have the X body, na? But Wilson and Steven showed that both male and female have the X body, not only male. And they called those X body to the supernumerary chromosome because those are seen in heterochromatized stage many times. So they call them the supernumerary chromosomes. And after that, this was in 1905. Okay. And after that, Steven in 1908 and Wilson in 1909 discovered another things. Okay. स्टीवन साहब 1908 में बताए कि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, वाई क्रोमोसोम भी होता है। इन दोनों ने साथ में मिलकर बताया कि मेल और फीमेल दोनों में ही होता है एक्स क्रोमोसोम। बाद में स्टीवन साहब 1908 में बताए कि नहीं, वाई क्रोमोसोम भी होता है, सिर्फ एक्स नहीं होता है, जो कि मेल में होता है। ठीक है। और विल्सन साहब 1909 में बताए कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स क्रोमोसोम का रोल है। अभी तक ये नहीं पता था कि एक्स और वाई क्रोमोसोम तो है। हेनकिन साहब भी 1891 में बताए थे कि एक्स क्रोमोसोम है या एक्स बॉडी है, लेकिन तब वो नहीं बता पाए कि क्यों है, मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है। फिर विल्सन 1909 में आके बताया कि एक्स क्रोमोसोम का रोल सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब क्रोमोसोम्स के बारे में पता चल गया तो ये नहीं, अब ये तो हो गया कि चलो ठीक है सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका रोल है, लेकिन ये कैसे है। ठीक है। तो मैकलम साहब 1902 में ही बताए हुए थे कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो ग्रास हॉपर में है। फिर उसके बाद आए मॉर्गन। वो क्या बोले कि वो ये ड्रोसोफिला पे रिसर्च कर रहे थे। मॉर्गन और उनके स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो कि उनका मैक्सिमम रिसर्च ड्रोसोफिला पे ही था और करीब 4-5 नोबेल प्राइज मॉर्गन साहब और इनके ग्रुप को मिला हुआ है। ठीक है। और वो भी सबसे सारा ड्रोसोफिला पे ही।
ठीक है। तो मॉर्गन साहब 1910 में बताए, जब वो व्हाइट आई जीन पर रिसर्च कर रहे थे, व्हाइट आई जीन ऑफ ड्रोसोफिला, इट इज डिनोटेड एज स्मॉल w, white eye gene of Drosophila. So he told that the white eye gene of Drosophila are located on the X chromosome. Okay. And this one was the first gene who was described that this one is developed, is present on the X chromosome or any particular chromosome. So when Sutton and Boveri given the chromosomal theory of inheritance, we all know that. What is chromosomal theory of inheritance? Chromosomal theory of inheritance says that each and every genes are present on the chromosome, okay, and he told this on the basis of that chromosomes and the genes behaves in the similar way during the development, during the cell division, during the segregation, and so many things. So he told that the chromosomal theory of these concept as the chromosomal theory of inheritance. It was originally developed by the Sutton. He given the term chromosomal theory of inheritance, but Boveri also reached on the same conclusion approx in the same year. So both are credited for this theory. Okay, this one in 1903. तो ये तो सटन एंड बोवेरी दे दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन इसका प्रूफ, सबसे पहला प्रूफ कि अच्छा अगर क्रोमोसोम पे ही जीन है तो कौन सा जीन है और कहाँ है, तो ये खोजे थे मॉर्गन साहब 1910 में कि व्हाइट आई का जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, और यही सबसे पहला जीन था तो जो खोजा गया था। ठीक है, और यही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है जहां से ओरिजिन होता है साइटोजेनेटिक्स का। ठीक है, व्हेन वी हैव टू आस्क दैट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज बर्थ ऑफ साइटोजेनेटिक्स। ओके, बर्थ ऑफ साइटोजेनेटिक्स यानी कि सेल में, न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम पे जो जीन्स है यहीं से होता है साइटोजेनेटिक्स का स्टार्ट, और यही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ना अब ये तो पता चल गया कि क्रोमोसोम्स पे जीन है, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसे करेगा, ये पूरा बात हो गया साइटोजेनेटिक्स का। अब हम लोग देखेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, कल से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ पार्ट है, जैसे कि इसका डेवलपमेंट में एक रह गया था मल्टीपल फैक्टर, ये हम लोग पढ़ेंगे वैसे ब्रीडिंग में, या फिर यहाँ पे भी मल्टीपल फैक्टर्स हाइपोथेसिस करते हैं थोड़ा बहुत जेनेटिक्स में। तो मल्टीपल फैक्टर का सबसे पहले आइडिया दिया था यूल ने, in 1906, but it was demonstrated। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब पता है ना, कि अगर किसी चीज को प्रूफ करने के लिए, एक्सटेंशन में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग कोई तरीका अपनाते हैं, या तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है या रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। अगर साइंटिस्ट खुद से करके दिखाता है कि ये तरीका, ये इम्प्रूव प्रैक्टिस है और इसको हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो ये मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है केवीके वगैरह में, रावे आप लोगों का चल रहा है तो आप लोग देखते होंगे कि केवीके वगैरह में कुछ कुछ ऐसे जो बड़े बड़े किसान हैं वो आते हैं, तो कुछ ऐसे नए जो इम्प्रूव्ड टेक्निक्स हैं उसको वो लोग खुद अपने यहाँ करते हैं फार्मर्स, ठीक है, साइंटिस्ट का हेल्प से। और उसके बाद जो बाकी गांव के लोग या आसपास के जो लोग होते हैं वो देखते हैं, तो उससे उनको पता चलता है कि अच्छा ये इम्प्रूव्ड तरीका जो है ये इस तरह से बेनिफिशियल है, इससे ज़्यादा ईल्ड आ रहा है या कुछ पेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, तो ये होता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, वो फार्मर्स के द्वारा किया जाता है, इसमें साइंटिस्ट हेल्प करते हैं, जबकि मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन साइंटिस्ट खुद ही करते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर का डिमॉन्स्ट्रेशन किए थे निल्सन एंगले ने।
barley. In wheat and barley. Okay. So this and in classical genetics we generally see about the Morgan's research, the research of Muller and Stadler. Muller discovered that the X rays can cause mutation, or it can change the gene sequence of the chromosome. Drosophila, X rays and Drosophila, and it was given by Muller in 1927. The Stadler was proved this, that the X ray and the gamma rays cause mutation in barley, wheat and barley both. So अगर हम लोगों से पूछा जाएगा कि एक्सरे म्यूटाजेनिक है, ये बात प्रूफ किए थे मूलर, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। फिर स्टाडलर साहब प्रूफ किए थे एक्सरे और गामा जो है वो म्यूटाजेनेसिस कॉज करता है व्हीट और बार्ली में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बायोकेमिकल जेनेटिक्स। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बायोकेमिकल जेनेटिक्स स्टार्ट किए थे ए गैरोट, सर एराचिबाल्ड गैरोट, सर इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये कैसे पता किया बायोकेमिकल जेनेटिक्स, कि उनका कहना था कि कोई बायोकेमिकल होता है, किसी भी जेनेटिक्स का जो रेगुलेशन होता है, जो आज हम लोग जानते हैं कि ये सच भी है, जीन्स आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन है जो किसी ना किसी रिएक्शन को रेगुलेट करता है। अगर वो प्रोटीन नहीं होगा या एंजाइम नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बताया कि हर रिएक्शन के पीछे कोई बायोकेमिकल होता है, कोई मतलब जीन जो है वो प्रोटीन के फॉर्म में या एंजाइम के फॉर्म में रेगुलेट करता है। ठीक है, तो उन्होंने इसको प्रूव किया। इनका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था एल्केप्टोन्यूरिया पे, एल्केप्टोन्यूरिया पे। और एल्केप्टोन्यूरिया एक डिजीज है ह्यूमन में। इनका बुक था इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि एल्केप्टोन या फिर होमोजेंटिसिक एसिड, ये एक सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में होता है। तो एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, तो जब वो एक्यूमुलेट होगा, उसका बायोसिंथेसिस नहीं हो, उसका यूज नहीं हो पाता है आगे मेटाबॉलिज्म में, तो वो एक्यूमुलेट होता है और वो यूरिन से बाहर निकलता है। जब वो यूरिन से बाहर निकलता है तो एयर के कांटेक्ट में आकर के वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और वो उसका वो आगे यूज क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि एक एंजाइम होता है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज, ये इस एंजाइम का डिफिशिएंसी होता है। इसके जीन में कुछ प्रॉब्लम होता है, म्यूटेशन हो गया होता है, जिसके लिए वजह से होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन पाता है, और होमोजेंटिसिक एसिड या फिर एल्केप्टोन जो है वो अक्यूमुलेट होता है और फिर वो यूरिन से बाहर आता है और ब्लैक दिखता है। तो एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज ही पहला डिजीज था, ह्यूमन डिजीज, जो सबसे पहले खोजा गया था कि ह्यूमन में होता है और जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, एल्बिनिज्म के बारे में भी उनको सेम रिजल्ट मिला था। तो इस तरह से उनके इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जो बुक था वो स्टार्ट किया था बायोकेमिकल जेनेटिक्स को, और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इतना जानते हैं कि हमारा जो भी एंजाइम जीन्स है, वो जीन जो एंजाइम बनाता है, जीन से आरएनए यानी डीएनए से आरएनए, और आरएनए से फिर प्रोटीन, प्रोटीन जो एंजाइम के फॉर्म में होता है टर्शियरी। हम लोग जानते हैं कि कौन सा प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में होता है, मोस्टली टर्शियरी या क्वाटरनरी प्रोटीन। प्रोटीन 4 टाइप्स होते हैं ना मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। In primary protein, they are bounded by only peptide bond. Okay,
हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तभी तो प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रेन होता है ना, तो पेप्टाइड बॉन्ड है। सेकेंडरी प्रोटीन में पेप्टाइड, सेकेंडरी ऐसे प्राइमरी प्रोटीन ना ऐसे होता है, ठीक है, जबकि सेकेंडरी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो क्या कैसे होगा, वो कुछ इस तरह से होता है। ये खुद तो आपस में अमाइनो एसिड से वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब ये वाला स्पाइरल जैसे घुमा हुआ होता है, ठीक है, अल्फा और बीटा हेलिक्स होता है इसका, तो ये एक स्पाइरल दूसरे वाले से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। टर्शियरी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ एक और बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि हम लोग जानते हैं कि एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। और क्वार्टनरी में भी पेप्टाइड, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड होता है। लेकिन क्वार्टनरी प्रोटीन का एक और स्पेशलिटी है, डिफरेंस है, कि टर्सरी तक तो वही है, यहाँ पे एक हेलिक्स था, टर्शियरी प्रोटीन में ऐसे दो हेलिक्स बनते हैं, लेकिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड का होता है, जबकि क्वार्टनरी में एक ही पॉलीपेप्टाइड नहीं होगा, 2-3 पॉलीपेप्टाइड होंगे। एक पॉलीपेप्टाइड ए हो गया, ये ए है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड बी हो गया, ठीक है। कभी कभी 3, 4, 5 पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, ये तीसरा भी रहेगा क्योंकि कहीं और स्पाइरल बन के रहेगा, ठीक है। तो जब क्वार्टनरी प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है और मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं वो क्वार्टनरी प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। ये हम लोग जाने कि 4 टाइप का प्रोटीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का एक सीधा सा धागा है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, क्योंकि एक जो स्पाइरल घुमा हुआ है यहाँ एक दूसरे के ऊपर स्टैक है, ठीक है, और एक स्पाइरल और दूसरे स्पाइरल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिगर में। फिर टर्शियरी में देखते हैं कि एक स्पाइरल बना और दूसरा स्पाइरल भी आगे बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनता है, जो कि हम लोग एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तभी देखते हैं। फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होगा। तो यहीं से बात शुरू हुआ है कि हम लोग देखेंगे कि एक थ्योरी हम लोग जानते हैं, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। एवरीवन नोज दैट 1 जीन 1 एंजाइम कौन दिया था? हाइपोथेसिस। हालांकि इसका प्रूफ बाद में आया, लेकिन जब दिया गया था तब इसका कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए हम लोग हाइपोथेसिस ही बोलते हैं। तो 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दिए थे बीडल एंड टैटम, नाइनटीन 41 में, है कि नहीं। और उन्होंने तो फिर जब आया कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस है, तो बहुत सारे ऐसे भी जीन्स हैं, बहुत सारे हाँ ऐसे भी एंजाइम है जिसमें एक से ज़्यादा जीन होता है, यानी एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होता है। तो फिर ये 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस सिर्फ उसी प्रोटीन के लिए, उसी एंजाइम के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड होता है। जहाँ भी एक से ज़्यादा होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म आया 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। ये दिए थे इनग्राम साहब इन 1957। उन्होंने कहा कि 1 जीन 1 एंजाइम नहीं, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड होता है, कि एक जीन एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। फिर इस पे भी ऑब्जेक्शन आया कि ऐसे भी तो जीन्स हैं जो पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाते हैं,
ऐसे कौन से जीन्स हैं जो आरआरएनए बनाते हैं? वैसे जीन्स जो न्यूक्लियोलस में जो जीन्स हैं जो आरआरएनए बनाते हैं वो पॉलीपेप्टाइड तो नहीं बनाते हैं। तो जब पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाते तो इसका मतलब कि वो जीन्स नहीं है, तो ये भी बात नहीं होगा। फिर आया, इससे भी थोड़ा एडवांस है कि नहीं, इसमें तो ऑब्जेक्शन आ गया, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी एडवांस फॉर्म आया, वन जीन वन डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट, that product can be the rRNA or the any RNA or the polypeptide or anything। तो अभी तक के हिसाब से ये ठीक है क्योंकि ये लगभग सब कुछ को कवर कर लेता है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है कि इसका भी है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई थ्योरी नहीं आया है। इससे एडवांस वन डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट, वन जीन वन एंजाइम आया था जो कि बीडल एंड टेटम दिए थे, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड दिए थे इनग्राम, और वन जीन वन डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मैं भी भूल रही हूँ जो मेजर साइंटिस्ट है उनका नाम। ठीक है, तो वन जीन वन एंजाइम का एक्सेप्शन था कि जो वो सिर्फ उस वन जीन वन एंजाइम वही फॉलो करेगा, वही एंजाइम जिसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड हो। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड आ जाता है किसी जीन में तो वो वन जीन वन एंजाइम को फॉलो नहीं करेगा। फिर आया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड तो है, तो फिर आया कि अगर सारा पॉलीपेप्टाइड ही बना रहा है सारा जीन, तो फिर आरआरएनए बनाने वाला जीन जीन नहीं है, यानी न्यूक्लियोलस का जो जीन होता है वो जीन नहीं है। फिर हुआ कि नहीं, इसका मतलब वन जीन वन डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट, बट दैट प्रोडक्ट कैन बी द आरआरएनए और एनी आरएनए और द प्रोटीन और एनी प्रोडक्ट विच मेड बाय दिस। अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स देख लिए, बायोकेमिकल देख लिए, साइटोजेनेटिक्स देख लिए, नाउ द मॉलिक्यूलर पार्ट। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट होता है जब वाटसन एंड क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल खोजे थे। ओके, डिफ्रैक्शन टेक्निक से। ओके, और डिफ्रैक्शन टेक्निक डेवलप किया था रोजालिंड ने। हालांकि उसके बाद वही डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल खोज रही थी और उनको किसी छुट्टी में जाना पड़ा और फिर ये काम दे दिया वाटसन एंड क्रिक को। उन्होंने क्लेम भी किया था इनके नोबेल प्राइज पे इसमें मेरा भी होगा, लेकिन फिर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो याद रखना डिफ्रैक्शन टेक्निक रोजालिंड का ही खोजा हुआ है, जिसपे इन्होंने आगे थोड़ा काम करके वाटसन क्रिक ने नोबेल प्राइज लिया था और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के फिर इतने सारे डीएनए हैं, उसमें इतना बहुत सारा जीन है, फिर ये सब। इससे भी पहले एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल खोजे थे, जो कि बताया था कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, यानी कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। उससे पहले अप्रॉक्स 1940 से पहले तक सब यही सोचते थे कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। 1940s के बाद मोस्ट प्रोबेबली द मैक्लॉयड और मैकार्टी का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बाद ही लोग ये थोड़ा समझने लगे और इसमें नेरेनबर्ग भी आए और भी लेडरबर्ग आए। तो फिर उन लोगों को लगा कि नहीं, वहाँ से खोज हुआ कि कंजुगेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसडक्शन है, तो बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। यहाँ पे ये मतलब वाटसन एंड क्रिक तो हो गया। फिर आती हैं बारबरा मैक्लिंटॉक। इन्होंने खोजा था जंपिंग जीन्स। अब जंपिंग जीन्स क्या है, इनको ट्रांसपोजोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका किसी भी क्रोमोसोम में फिक्स पोजीशन नहीं होता है। ठीक है, इस क्रोमोसोम में यहाँ पे है, कभी भी जंप करके दूसरे क्रोमोसोम में यहाँ पे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे चले जाएंगे। मतलब ट्रांसपोजोन्स जो होता है उनका स्ट्रक्चर वो यहाँ से वहाँ जंप करते रहते हैं, इस क्रोमोसोम से उस क्रोमोसोम में, कभी कभी सेम क्रोमोसोम में और कभी कभी दूसरे क्रोमोसोम में। तो बारबरा मैक्लिंटॉक जो है इन्होंने जंपिंग जीन्स को खोजा था मेज प्लांट। ठीक है, बाद में दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी पता चला था, लेकिन मेज प्लांट पे उन्होंने खोजा था जंपिंग जीन्स को।
आता है थोड़ा और डेवलप हुआ। फिर कुछ साइंटिस्ट आए जो कि इन विट्रो सिंथेसिस करने लगे। एक थे ओकोआ साहब जो कि आरएनए का इन विट्रो सिंथेसिस किए, यानी कि लैब में आरएनए बनाए। वो न्यूक्लियोटाइड्स को रख करके लैब में आरएनए बनाए, ठीक है। तो और कॉर्नबर्ग he synthesized DNA in vitro. Okay, there is another scientist, Khurana, H.G. Khurana. He was an Indian born scientist. He worked on many things. His contribution in the deciphering the genetic codes. He also developed the DNA. हाँ, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था पहले ही, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत बाद में 1968 में एच.जी. खुराना साहब आए थे, आई थिंक। तो ओकोआ और कॉर्नबर्ग साहब थे, इन्होंने 1956 में आरएनए और डीएनए का इन विट्रो सिंथेसिस किया था अलग अलग, और 1959 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। फिर एच.जी. खुराना 1968 में, इनका बहुत सारा काम था। इन्होंने सबसे कॉमन है कि इन्होंने डीएनए का इन विट्रो सिंथेसिस किया, जो कि फिनाइल एलानाइन अमीनो एसिड बनाता था, उसके लिए उन्होंने डीएनए बनाया था, ठीक है। इन्होंने जेनेटिक कोड में भी बहुत सारा हेल्प किया। जेनेटिक कोड को डिकोड करने के लिए, वो कोड था ना, उसको डिकोड करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है निरेनबर्ग का। ठीक है, निरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड को डिकोड करने में या डिसिफर करने में सबसे बड़ा रोल दिया है। हालांकि क्रिक का भी रोल है, वाटसन क्रिक के जो क्रिक है वो, उन्होंने जो जेनेटिक कोड का डीजेनरेशन पता किया था। ओके, और एक वोबल हाइपोथेसिस भी दिए थे। क्रिक साहब का क्या क्या काम है मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने जेनेटिक कोड का डीजेनरेट होता है जेनेटिक कोड, ये बताया था। फिर उन्होंने वोबल हाइपोथेसिस दिया था, यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रांसलेशन में कि टीआरएनए लेके आता है अमीनो एसिड को और फिर एमआरएनए के ऊपर रखता है और वहाँ से फिर चेन बनता है और पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो उन्होंने कहा कि एमआरएनए का फर्स्ट और सेकेंड और टीआरएनए का सेकेंड और थर्ड, ये दोनों स्ट्रिक्टली बाइंड होता है, लेकिन एमआरएनए का जो थर्ड वाला है यानी कि टीआरएनए का जो फर्स्ट वाला है वो इतना स्ट्रिक्टली बाइंड नहीं होता, वो कभी कभी इधर उधर हो जाता है। इसीलिए तो बहुत सारे कोड्स हैं, जैसे ए यू ए जी ए टी, तो ए कॉमन है। अब यू जी टी अगर चेंज हो भी रहा है तो भी उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो वोबल हाइपोथेसिस यानी डीजेनरेशन इन्होंने क्रिक साहब ने दिया। इन्होंने सेंट्रल डोग्मा का भी कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स तो दिया ही था, तो ये हो गया क्रिक का। एक नाम आता है सिडनी ब्रेनर। ओके, सिडनी ब्रेनर स्टॉप कोडोन है ना, इसको खोजे थे। स्टॉप कोडोन्स were discovered by सिडनी ब्रेनर। ओके, he told कौन कौन सा स्टॉप कोडोन है? UAA, UAG एंड UGA, ठीक है, ये तीन स्टॉप कोडोन है। इसको सिडनी ब्रेनर साहब ने खोजा था, ठीक है। एक और नाम आता है इसमें, हरगोविंद खुराना, यही एच.जी. खुराना, एच.जी. इन्होंने भी जेनेटिक कोड को डिसिफर करने में और उसका बहुत सारा सीक्वेंस बनाने में 6 बेस पेयर का उन्होंने एक सीक्वेंस बनाया था डीएनए का सबसे पहले, तो इसमें भी इनका रोल है। और इन्होंने फिलिप और निरेनबर्ग के साथ भी जेनेटिक कोड में भी बहुत सारा काम किया था। Now we will see the recombinant DNA technology.
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या होता है? सिंपल बात है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से काइमेरिक डीएनए बनता है। अब काइमेरिक डीएनए क्या है? जब किसी डीएनए में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का डीएनए सीक्वेंस आ गया है तो काइमेरा है। काइमेरा का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कोई सपोज ये डीएनए स्ट्रैंड है, इतना सा पार्ट किसी और ऑर्गेनिज्म से आया हुआ है, इतना सा किसी और से, और ये फिर पहले वाले से, या फिर यहाँ पे किसी तीसरे वाले का आ गया हो, तो ये हम लोग काइमेरा बनाते हैं। काइमेरा वायरस जो होते हैं, काइमेरा हम लोग ब्रीडिंग में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में भी काइमेरिक कॉम्बिनेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि चिकन जो है उसमें भी काइमेरिक कॉम्बिनेशन है जब वो सेक्स रिवर्सल करता है उस टाइम में। और फिर प्लांट्स में तो बहुत ही कॉमन है, जो हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है उसमें भी लेयर्स हैं। ठीक है, L1 L2 L3 लेयर्स, तो उसमें भी जब हम लोग म्यूटेशन कॉज करते हैं तो किस लेयर में म्यूटेशन हो रहा है इस हिसाब से डिपेंड होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में वो म्यूटेशन इनहेरिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीएनए में रिकॉम्बिनेशन कराया जाता है, यानी कि कहीं बाहर से उसमें डीएनए ला करके इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट हुआ था जब हमारे साइंटिस्ट ने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज खोजा था। ठीक है, सबसे पहले रिपोर्ट किया था आर्बर साहब ने खोजा था। उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि हाँ कुछ ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटता है। ठीक है, हालांकि स्मिथ, नाथन एंड आर्बर, इन तीनों को ही रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस खोजने के, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस करता क्या है कि किसी भी डीएनए को, एक लंबा सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके स्पेसिफिक सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल हर एंजाइम का अपना अपना है, AAG TTC, यहाँ पे ये पैलिंड्रोमिक होता है। इसमें एक ये भी स्पेशलिटी है कि जहाँ पे वो काटता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। यहाँ C है, यहाँ C, फिर T, अगर CTTAAG तो CTTAAG पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। ठीक है, और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से काटेगा, तो ये होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटेगा और वो सीक्वेंस में पैलिंड्रोमिक होगा, यानी कि हम लोग आगे से पढ़ेंगे तब और पीछे से पढ़ेंगे तब सेम सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से का हम लोग आज इतना यूज कर रहे हैं कि जो भी हम लोगों का रिक्वायरिंग प्रोटीन्स होता है, बहुत सारा जीन्स होता है, और ड्रग्स बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ में म्यूटेशन करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाते हैं, क्रॉप का वेराइटीज़ बना रहे हैं। हम लोग ब्रीडिंग में सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ट्रांसजेनिक क्रॉप जो बना रहे, बहुत सारे वेराइटीज़ है जो आज के ज़माने में हम लोग यूज़ करते हैं। सोयाबीन का बहुत सारा वेराइटी है जो ट्रांसजेनिक है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक क्रॉप सोयाबीन ही यूज़ किया जाता है। जो सोयाबीन ऑयल हम लोग खाते हैं, जो टेम्परेट रीजन्स में ग्रो किया जाता है, टेम्परेट कंट्रीज में, तो वो सब उसका बहुत सारा यूज है। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं एक और पॉइंट है हमारे बुक में दिया हुआ, फॉरवर्ड एंड रिवर्स जेनेटिक्स। ये फॉरवर्ड और रिवर्स जेनेटिक्स का क्या मतलब है, ऐसे देखते हैं। सबसे पहले 1900 के अराउंड चलते हैं। ठीक है, 1900 में दुनिया ज़्यादा डेवलप नहीं था, जेनेटिक्स के बारे में बहुत कम पता था लोगों को। 1900 में ही तो मेंडल का रीडिस्कवरी हुआ था, मेंडल्स के प्रिंसिपल्स का या उसके थ्योरीज का, जो एवरी मैक्लॉयड एंड कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज एंड सरमैक ने किया था। तो उन्होंने, तो उस टाइम में ज़्यादा नहीं पता था जेनेटिक्स के बारे में। तो क्या हम लोग देखते थे कि कैसा जेनेटिक्स है, तो सबसे पहले अपीयरेंस देखते थे कि अच्छा ये ऐसा है
किसी बच्चे का देखते थे कि अच्छा ये उसका ये कैरेक्टर उसके मामा की तरह है, उसके पापा की तरह है, उसके चाचा की तरह है, उसका मम्मी की तरह है, मौसी की तरह है। तो इस तरह से हम लोग अपीयरेंस देखते थे। फिर थोड़ा आगे बढ़े, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस में कि अपीयरेंस के बाद थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि नहीं क्रोमोजोम है इसमें, फिर डीएनए है, इस तरह से। तो जब हम लोग फिनोटाइप से डीएनए तक जाते हैं तो ये फॉरवर्ड जेनेटिक्स, हम लोग इसी तरह से तो डेवलप होकर क्या है 1900 से 2021 तक में इसी तरह से तो डेवलप हुआ है। आज हम लोग जीरो में एडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन तब तो हम लोग अपीयरेंस ही देखते थे। जो साइंटिस्ट मेंडल ने कैसे पता किया कि इसके पास ये मतलब ऐसा कैरेक्टर है, अपीयरेंस के हिसाब से ही ना। तो फिर आज जब हम लोग देखते हैं मतलब जीन्स के एकदम अंदर घुस के उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देखते हैं तो ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स या फिर हमारे बेसिक जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जैसा हम लोग आज डेवलप हुए हैं वो फॉरवर्ड है। तो रिवर्स जेनेटिक्स क्या है? रिवर्स जेनेटिक्स में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिवर्स जेनेटिक्स को यूज करता है। जेनेटिक्स का डीएनए का कोई टुकड़ा उठाया, ठीक है, उसको लगता है क्या कि हाँ ये वाला टुकड़ा ना पर्टिकुलर जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो वो डीएनए का टुकड़ा उठाया, वो सबसे पहले डीएनए को देखा, डीएनए लिया, फिर उसको किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसप्लांट किया या उसको इंसर्ट किया, वहाँ से फिर देखा कि उसका कैसा उसके क्रोमोजोम में किया, फिर वहाँ से देखा कि उसका कैसा अपीयरेंस आ रहा है, यानी कि उसका फिनोटाइप कैसा आ रहा है। तो जब हम लोग डीएनए से फिनोटाइप तक जाते हैं तो ये होता है रिवर्स जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या था, जिस डायरेक्शन में हम लोग आए हैं 1900 से 2021 तक के बीच में जो आए हैं, तो ये है फॉरवर्ड जेनेटिक्स। जबकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिवर्स जेनेटिक्स यूज होता है, यानी कि हम लोग एक डीएनए उठाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किए, फिर वहाँ पे देखते हैं कि वो कैसा फिनोटाइप शो कर रहा है या कैरेक्टर कैसा शो कर रहा है। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड जेनेटिक्स we see we move from phenotype to DNA, and in case of reverse genetics we move from DNA to the phenotype. This one is completed. One more last thing which is discussed in our books, so I am discussing here the research of genetics in India. इंडिया में जेनेटिक्स का रिसर्च सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में 1906 में, जो कि बिहार में है और बहुत नज़दीक है मेरे घर से, अप्रॉक्स 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर 130 किलोमीटर्स होगा, ठीक है। वहाँ पे एक बहुत अच्छा कैंपस भी, आज उस यूनिवर्सिटी का नाम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है और बहुत ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन जब इम्पीरियल बना था वो बाद में उसका जब नाम चेंज करके IARI कर दिया गया था, जो IARI भी दिल्ली में है, पूसा रोड में, ठीक है। 1934 में अर्थक्वेक आने की वजह से वहाँ का सारा समस्तीपुर पूसा बिहार का सारा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया था और इस तरह से, तो फिर 1936 में उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया में जेनेटिक्स के रिसर्च का स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ बहुत सारे रिसर्च हुए इंडिया में भी या फॉरेन कंट्रीज में भी, लेकिन हम लोग जब इंडिया की बात कर रहे हैं तो देखते हैं अप्रॉक्स 1930s के अराउंड यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। म्यूटेशन करके जो रिसर्च हो सकता था या नया वेराइटीज रिलीज हो सकता था उस पर 1948 में सबसे पहला म्यूटेंट वेराइटी, वर्ल्ड का सबसे पहला म्यूटेंट वेराइटी इंडिया में ही डेवलप किया गया था, ठीक है। उसके बाद है आते हैं वेंकटरमन साहब, ऐसे MS स्वामीनाथन भी थे, उन्होंने जो मैक्सिकन इंट्रोडक्शंस था सोनोरा 64 और लर्मा रोजो, तो उसका उन्होंने अच्छा सिलेक्शन ले करके फिर यहाँ पे कल्याण सोना और सोनालिका इस तरह बहुत सारी इंडियन वैरायटीज़ बनाई जो कि यहाँ के लिए अडेप्टेबल था और यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया इसकी वजह से। लेकिन जो जेनेटिक्स के फील्ड में है उन्होंने काम किया था, सबसे कंसिडरेबल है BP पाल का भी, उन्होंने रेजिस्टेंट वैराइटीज़ बनाई थी बहुत सारे। उसके बाद TS वेंकटरमन जो कि नोबेलाइजेशन ऑफ केन्स के लिए जाने जाते हैं, यानी कि नोबल बनाए केन्स को। इंडिया में सेकेरम बारबेरी था या सेकेरम साइनेंसिस था, चाइना में स्पॉन्टेनियम है, लेकिन इस सारे स्पीसीज में कुछ ना कुछ कमी था,
वो बहुत ही परफेक्ट नहीं था, ठीक है। मोस्टली ये सब वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस था, लेकिन इनमें शुगर क्वांटिटी कम था या फिर जूसी कम था, इस तरह कुछ कुछ प्रॉब्लम था। तो उन्होंने सेकेरम ऑफिसिने जो कि बेस्ट था शुगर प्रोडक्शन के लिए, उसमें यहाँ के जो साइनेंसिस या फिर बारबेरिया उसके रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफ़र किया था, या तो बैक क्रॉस प्रोग्राम से, या बहुत सारे उस टाइम में तो बैक क्रॉस प्रोग्राम ही सबसे ज़्यादा था, या रिकरेंट सिलेक्शन वगैरह से। तो फिर नोबेलाइजेशन किया वो केन्स का, और पूरी दुनिया में आज के ज़माने में पूरी दुनिया में जहाँ भी केन्स का यानी शुगर केन का ब्रीडिंग होता है वो नोबेलाइजेशन के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। और अभी भी BHU में जेनेटिक्स का जो साइंटिस्ट का रिसर्च बोर्ड है वो BHU में है, बनारस में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जेनेटिक्स का ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और कल तो टेस्ट है, कल संडे है, संडे को हमने एग्री कोर्स कमांडोज पे टेस्ट रखा है, जो कि हमारा पहला टेस्ट है, जो माइनर टेस्ट है। और इसके बाद हर वीकली टेस्ट होगा, जहां आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कल का टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप एग्री कोर्स कमांडोज का प्लांट साइंस का जो रेगुलर क्लासेज है उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर अगर कोई क्लास नहीं लेना चाहता है, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ इस नंबर से कॉल करके आप पता कर सकते हैं। एग्री कोर्स कमांडोज का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू। अगर आपको आज का क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।